السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف میں 2-3 دن سے ایک ویڈیو اور سوشل میڈیا میں یوٹیوب میں گردش کر رہی ہے اور کچھ لوگ زہر اگل رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کے خلاف میں ایک شعر پڑھنے کی وجہ سے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے ہمارا بھی دور آئے گا۔ اس شعر کو پڑھنے کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ میں کیا سے کیا ہو رہا ہے اور الزام پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ دوستو، ویسے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اوپر چاہے سنی ہو یا دیوبندی ہو یا سلفی ہو یا اہل حدیث ہو، کسی بھی مکاتب فکر کے ماننے والے ہو، سبھی کے سبھی عقیدت رکھتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب سے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، بے شمار علماء دیوبند کے علماء لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے بے شمار ہندو لوگ بھی جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اچھا برا کو سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کون سا برا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو اچھا اور برا میں فرق پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے ہمارے ہندو بھائی لوگ بھی مفتی سلمان اظہری کے ساتھ سمرتھن کے لیے کھڑے ہیں۔ جو پنڈت لوگ ہیں وہ بھی مفتی سلمان اظہری صاحب کی سمرتھن میں آواز اٹھا رہے ہیں، جلد سے جلد رہائی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ دوستو، یہ پنڈت ہیں، آپ اس کی زبان سے سنیں کتنے جوش و خروش میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی رہائی کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اے بھگوان، اے رام، اے کبیر، اے منصور، اے ستگر مہاراج، مفتی کو ترنت رہا کیا جائے۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ اگر کاٹ دوں رکت تو لال نکلے گا۔ بش کا کوئی بھی یہ ویجانک بتا نہیں سکتا کہ ہندو کا رکت ہے کہ مسلمان کا رکت ہے۔ کو ترنت رہا کرو، ہم مفتی کے ساتھ ہیں، اس لیے ہیں۔ یدی یہ قانون ہے تو لوک سبھا میں جو بیان دیا گیا تھا، رمیش بدوڑیا نے کہا تھا، کٹوا شبد کیا کیا شبد کہا تھا، ان کو بھی گرفتار کریے۔ کسان نہیں تو ہم لوگ بھی اسی کے ساتھ رہ کر کے آندولن کرنے کا کام کریں گے۔ کیا کہتی پران کہے، قرآن کہے، پیر کہے، پیغمبر کہے، رام کہے، کرشن کہے، کبیر کہے، منصور کہے، روداس کہے، وشو کے سبھی دھرم گروؤں نے کہا سب سے بڑا دھرم ہے تو مانوتا اور انسانیت۔ اگر اس کی پنچایت سے آپ کا سانسد بولتا ہے اس پہ گرفتاری نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ اس دیش میں مسلمان کے نام پہ پھر راجنیتی ہوگی تو سنتوں کی بھجن نہیں ہوگی۔ مفتی کو ترنت رہا کیا جائے، اگر نہیں رہا کرتے ہو تو سانسدوں کو گرفتار کرو۔ یہ سب کا مالک ایک ہے، وہ بھی عبادت کرتا ہے اللہ کے نام سے، ہم رام کے نام سے عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب جو علماء دیوبند میں بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں آج کے ڈیٹ میں۔ انہوں نے مفتی سلمان اظہری کے بارے میں کتنی ہمدردی پیش کی، آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے۔ جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکتنترک ویوستھا ختم ہو چکی ہے۔ آزادی رائے، اظہار خیال کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ ایک زبردست ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ چل رہا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی۔ یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مبتلا ہیں۔ ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں۔ یہ بات بھی ان کی بہت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے پاس جمع ہونے والے مجمع کو خود سنبھالا اور اس سے گزارش کی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ کھڑا ہونے دیں، اور اس کے بعد عوام وہاں سے منتشر ہوئے۔ صاف ظاہر ہے کہ کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کو بگاڑ رہا ہے اور کون ہے جو لا اینڈ آرڈر کی حفاظت کی کوششیں کر رہا ہے۔
दोस्तों देखिए कि नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वो इंसान हैं जिसके लिए हर कोई परेशान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की हर अदा से जलते हैं और वो चाहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर बड़े से बड़े इल्जाम लगे। उनकी तमन्ना यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर उम्र कैद कर दिया जाए तो ये और अच्छा होगा उनके लिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं। दोस्तों उस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को देखें। यह है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमरी साहब। इन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से कितनी मोहब्बत की बातें की हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर उनसे ताबीर किया, किसी शायद उनका नाम लिया गया है, तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी, ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुछ ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो नहीं है तो क्या है? अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। दोस्तों देखिए कि नहीं, अब आइए उस वीडियो को देखते हैं जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ में है और जहर उगला जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए, उम्र कैद करने के लिए कुछ मुस्लिम किस्म के लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, जो अपने आप को सूफी कहलाते हैं, ये लोग उतर आए हैं और इस वीडियो के जरिए से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और खतरे में आ सकते हैं। लेकिन इसको वीडियो बनाने की वजह क्या है ये भी मैं बताऊंगा कि इसको कारण क्या है, इसको किसने इस तरीके से उस्काया गया, ये सूफी खान का एसोसिएशन का कारण क्या है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये बाद में बताऊंगा। पहले आप इसकी वीडियो को देखें। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अजहरी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई और सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का सूफी खानका एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानका एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीजों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों देखिए कि नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन में ये सूफी खानका एसोसिएशन, ये शैतान सूफी कौसर ने कुछ वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ में और भी बनाया था, लेकिन अभी हालात कठिन है तो ये वीडियो तेजी के साथ गर्दिश कर रही है। दोस्तों असल मकसद क्या है इन लोगों को ऐसी हरकत करने में? तो वजह यही है कि अब सरजमीन हिंदुस्तान में सूफियों का दौर शुरू होना चाहिए। ये नमाज रोजे बंद होना चाहिए, महफिलों की जगह में कव्वाली होनी चाहिए, जहां पर इश्क नबी की बात होती है वहां पर डांस होनी चाहिए। नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं है। अब जरा सोचे, पूरे हिंदुस्तान के लोग, हर मजहब के लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में खड़े आने के लिए तैयार हैं और रिहाई के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, और ये गिरफ्तार होने के लिए वीडियो बना रहा है और लेटर के जरिए से भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कितनी तकलीफ है इसको। ये अपने आप को मुसलमान कह रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये मुसलमान होगा, क्योंकि इसके चेहरे से ही पता चलता है कि मुसलमान होगा ही नहीं। मुसलमान के चेहरे जो आलिम होते हैं, जो सूफी होते हैं, उसके चेहरे ऐसे नहीं होते हैं। इसके चेहरे को गौर से देखने की कोशिश करें, ठीक सूअर के जैसा इसका चेहरा लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बोलने में अगर ज्यादती हो रही हो तो आप मेरी इस्लाह करें, वरना नहीं तो आपकी क्या राय है इस सूफी के बारे में, इस शैतान इंसान के बारे में? कमेंट में जरूर अपनी राय को पेश करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।